बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़िए अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। उसने इंसान को अलग से तख्लीक किया। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़िए और आपका रब बड़ी इज्जत वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो जानता न था। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. A very warm welcome to all of you. My name is Abdul Samad Khan and I am VP Engagement of Ski Alumni Association. I, along with my fellow Zulkarnain Haider, will be your moderator for today's session. We are going to formally start this session, and the first thing that we are going to do is the address of the President Ski Alumni Association. I would like to introduce Mr. Adil Oon, who has been elected as the Ski Alumni Association President. Mr. Adil Oon is graduate of NICE in 2012, and he has completed masters and currently working in IDAP as AM projects. He is NABOR certified and has been very dynamic, has been working in Pakistan and abroad at a number of projects. I would request you, sir, please join in and put in a few words about what Ski Alumni Association has done so far and what are the plans that we are going to achieve in the upcoming time. Adil Oon, sir, please. Thank you very much, Samad. Assalamu alaikum, everyone. A very warm welcome to our honorable guests, Sir Suhail, Sir Mohsen, Sir Haider, and the audience. Thank you, all of you, for gracing this maiden webinar of Ski Alumni Association. And since this is the first time that we have a chance to interact with you after election, so first of all, I'd like to thank all of you for your choice and giving us a chance to give back to our alma mater. And we look forward to performing to the best of our expectations, your expectations, inshallah. And before moving ahead, I would like to apprise all of you on some developments herein. We had our first meeting with the principal Ski General Tariq, and we are very fortunate to have his well-rounded support with us. And at ski level, both at ski level and NUST level. So first of all, at ski level, we'll soon have our own bank accounts functional, and we'll begin our endowments drive, inshallah, soon. So with this, we will be introducing Ski Alumni Association scholarship programs, and in the next phase, we can also move to giving easy loans to our students and graduates. So we have been also aligning several national companies for job fair expected in November, inshallah, this year. So we will have good number of companies which will be participating in these job fairs. So then these sort of webinars, seminars, and the training programs, they will also be made a part of routine matter for preparing our graduates to combat the industry and higher education challenges. So, and the other aspect at the NAA level, since I'm also the Vice President Engagement of National Alumni Association, we are working on some changes in alumni portal. The main aim is to develop engagement nodes and to maximize the engagement with the alumni. So soon we'll be having potential employers registered on the portal as, and I will be able to use that portal as sort of a mini LinkedIn, you can say. So this is the foremost development, I believe, because most of us need guidance, and once you know about the relevant colleague, you surely will have a bigger chance to avail several opportunities in the industry or higher education or wheresoever. So similarly, to ascertain that we can have mutual exchange of information to and from the alumni, we are in process of making batch representatives as part of NUST Alumni Association policy document, where every batch will have their own
representative in the Alumni Association. So they will be formally announced and assigned with their jobs, inshallah, very soon. So in a nutshell, a lot has been done so far, and even more is still in the plans, still in the developing stage, so which we'll be keep sharing with you over the time. And pertinent and very important to mention here is your support, the support from our alumni, because our performance, our success, our execution is, if I cannot say solely contingent upon, but majorly contingent upon the support which we look at from your side. So coming back to today's webinar, the theme of the webinar is primarily hovering around what we call shifting paradigm. So it has been observed that there is a shift in the industry dynamics. So, there are many new avenues of development are seen around, and there are multitude of opportunities in the industry right now, be it scholarships, be it entrepreneurship, and be it the job industry. So as per vision of my team, we want that our graduates should avail most and maximum of these opportunities. And this webinar, I see it as a much needed dose for young graduates as they have just entered in their professional life and they have just made their ways in the market. So, well, for that purpose, now we have made available for you the best human resources in the business, the best one available assets in the market. So we are honored to have them who are the experts of their matters, and I'm sure by the end of this session you will be carrying something with you to excel and have some advantage over your peers. So that's all from my side. Let us start the session formally, and happy learning. Thank you so much. Thank you very much, the President of Ski Alumni Association, Mr. Adil Oon. And as rightly said, this paradigm is shifting and the job opportunities are changing. Before moving ahead, I would like to introduce the panel that we have with us today. And we have Mr. Suhail Iqbal. Suhail Iqbal, sir, is graduate of MCE NAST class of 1987. Has a very dynamic experience, currently working as Chairman, Project Management Association of Professionals, and also a CEO of Syscom International. Syscom International is registered with PMI and is providing education and trainings on project management. Mr. Suhail has been working in a number of projects as and playing a very vital role in revolutionizing the project management industry of Pakistan. His input has been very valuable to all, and I would like to add on that Mr. Suhail has conducted over 1,500 training sessions, workshops, seminars, and courses during the last decade. And to add on, over 25,000 students have been benefited from these workshops in all the fields, including the telecom, construction, to NGO, to public and private sectors. Very right said, Mr. Suhail is renowned as the powerhouse of the project management industry and professional development. We thank you on board, sir, and to name a few of the things that you have done so far in the industry and a lot more. We welcome you on board, sir. Thank you very much. Thank you. We have Mr. Mohsin Islam Khan. Mohsin Islam Khan, sir, is civil engineer by profession. He is graduate of UT Lahore class of 2007, and he has completed his MS from IESC NAST in 2014. He has completed MS from NIT in construction engineering and management. He is currently working as head of projects control infrastructure development authority of Punjab. Well, we all know Infrastructure Development Authority of Punjab, IDAP, is an unconventional style of public sector organization which is conducting state-of-the-art projects, and that is being led by IDAP, and Mr. Mohsin Islam Khan has been part of that. The major projects include the PKLI, Nishta 2 in Multan, and other. He has been management specialist, and to name it, he has been accredited mediator from National Center of Dispute Resolution. Sir Suhail has been part of the faculty of various universities and holds an exceptional profile. I'm very much hopeful that
the experience of Mr. Mohsin will provide a guidance to all the young aspirants about the shifting paradigm of the market and how to be competitive in the environment that is currently changing. I welcome you on board, Mr. Suhail, Mr. Mohsin Islam Khan. Thank you. Thank you. And last but not least, we have on our panel Mr. Haider Ali. Mr. Haider Ali has completed his chemical engineering from UT Lahore in class 2011. He has done his MS in environmental engineering class 2014 IESE, currently working at Nestle. He has been affiliated with multinational fast-moving consumer goods as its HR business partner since years. He is a life coach, career coach, and will guide you upon CV writing, interview skills, and how to hunt the jobs. I'm very much hopeful that the experience of Mr. Haider Ali will give the young aspirants scholarship programs, and in the next phase, the job market. I welcome you on board, Mr. Haider Ali, sir. Thank you. To start, Thank you, Abdul Samad. to start with, I will first of all go towards Sir Mohsin Islam Khan. Sir, as we are seeing that the paradigm is shifting and new jobs are being created and new skills are required to be in the market, I would like your comment on an overview how the paradigm is being shifted and what opportunities are around the corner. Please guide our listeners. Mr. Thank you very much. Thank you very much. First of all, I would like to thank the Ski Alumni Association for arranging this wonderful session, and I hope that the participants will gain something out of it. Allow me to extend my gratitude to Suhail Iqbal Sahab as well. It's an honor, sir, sharing this platform with you. And for everybody's knowledge, I'm his student as well. So he has played a major part in my success as well. Okay, so the paradigm is shifting. So this is a very it's a big wordy sort of a term. Paradigm is shifting, but it can mean a lot of things. That the conventional system has been changed, the behaviors have been changed, the opportunities in the industries have been changed. But whenever you see or a fresh graduate who just pass out from a university, he steps into the professional life, he see that things are pretty much the same. Then why are we asserting that the paradigm is shifting? You see, the technological advancements in last 2 decades have been phenomenal, and the technological growth thereof is exponential, really. So although you may not see big leaps of changes on local level, but right now the whole world is in your grab. So if an individual is want to learn a skill at this moment, he can just open any search engine and search from various online courses like Coursera, edX, and there are various platforms available. You can learn from the best of the universities, best of the teachers in the entire world. And similarly, the opportunities to work are also that much expanded. So for somebody who has that hunger, that thirst to excel professionally, it is not very the hurdles are not as profound as it were 20 years ago.
you have the whole world at your fingertips, and this with this current technology, with the advent of social interaction through various social media platforms, and this opening up of the entire world for young professionals, this is the paradigm shift which we all should prepare for, and which we all should try to capitalize. So in today's market, we say that an engineer, let's suppose a software engineer has graduated, and he does not find a job right away. He can just make his account on Fiverr, and he can work as a freelance software developer. And similar opportunities are available for so many people from all walks of life. Right now, if somebody is really struggling with a job, he has just graduated and he's not finding a suitable job, then I think he's not looking up, and he's not trying to capitalize on this shifting paradigm, on this new arena of the professional growth that we are experiencing at this moment. So everybody who is out there looking for career growth, I would suggest them to focus on their personal and professional development. If you have time, if you're not working full time, you try to spend more time on your professional development, and try to reach out to the people, market your skills, tell them that what you can do for them, and certainly the right opportunity will pop up. So in order to exploit this situation, there are a number of skills that can help you. I presume that everybody who is graduating knows his field. So a software engineer knows his craft. He's good at programming. He's good with computers. A civil engineer who has just graduated knows the structures and the engineering stuff he has been taught in the university. But the thing that young professionals need to work on are the soft skills. How to approach a senior, how to approach an opportunity, how to impress somebody. You have to grab the attention in first few crucial seconds. And that is very important. So where the graduates are very good with the technical skills, they need to really enhance and step up their game in the soft skills as well. Their interpersonal skills, their CV writing skills, their interview skills. All these things matter a lot. Thank you very much, sir, for the very detailed answer. And I would like to move towards Sir Suhail. And as sir, we can see in your profile that you've done a number of certifications, and I would like कि आप इस चीज़ पे नज़र डालें कि इंडिविजुअल्स को क्या चीज़ करनी चाहिए कि वो ये जो स्किल डेवलपमेंट है अपनी इसको इम्प्रूव करें. एंड सेकेंडली आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस क्वेश्चन टू द फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल कि सर्टिफिकेशंस कितनी इम्पोर्टेंट हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए और अपने आप को अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए और अपने आप की वैल्यू बनाने के लिए मार्केट में. सर सुहेल प्लीज. जी बिल्कुल. You see, I being a civil engineer myself, I have been feeling from the very day I completed my degree that we were taught civil engineering, but we were not taught the soft skills. We were not taught project management. We were not taught how to manage our time. Although we are expected to be the best project managers of all times, but at the same time,
we have absolutely no training whatsoever on these skills. Like soft skills are extremely important, as Mohsin has already said, and we don't have any soft skills. हम लोग वो लोग हैं जो accidentally चीजें सीखते हैं. When we are put into किसी भट्टी में जाते हैं तो वहां से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के आ जाते हैं और वो भी उतनी सीखते हैं जितनी दिखाई जाती है. Similarly, soft skills, जिस चीज की जहां जरूरत पड़ गई थोड़ा सा सीख लिया. Formally, we are not trained. ये काम आपके तालीमी इदारों का है. Your university should have taught you these skills as well. मैं आपको बताऊं कि यूईटी वालों ने मुझे आज से 15 साल पहले इसी तरह गेस्ट स्पीकर के तौर पे बुलाया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात करने के लिए, और मैंने वहाँ पे नेचुरली आई थॉट आई एम गोइंग टू इंजीनियर्स, सो आई प्रिपेयर्ड सम एडवांस टॉपिक्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. मैंने कहा स्टूडेंट से बात होगी, वो पासिंग आउट वाले थे, जाने वाले थे वहाँ से. तो मैंने स्टार्टेड ऑफ, मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती होगी तो लेट्स टॉक अबाउट सम एडवांस टॉपिक. उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है. आई जस्ट इमीडिएटली लुक बैक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड आई रिमेंबर we had never been taught a single subject on project management. एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स. उसमें एक चैप्टर में एक पासिंग सा रिमार्क था, क्रिटिकल पाथ. उतनी तालीम थी जी हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के हवाले से, और करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं. तो ये दो चीजें आप देख लीजिए. मैनेजमेंट स्किल हमारे में नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आते. तो उसके लिए लोग ये जो मैनेजमेंट में एमबीएस कर लेते हैं या मैनेजमेंट इन इंजीनियरिंग जो डिग्रीज हैं, वो बहुत अच्छी चीजें हैं, करनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ इनिशियली यूनिवर्सिटीज को कंट्रीब्यूट जरूर करना चाहिए. तो सर्टिफिकेशन जो है वो आप एक स्टॉप गैप मेजर देती है. व्हेन यू आर इन द फील्ड, मार्केट में है और आपके पास टाइम नहीं है कुछ और करने का, तो काम के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते जाएं. खुद अपने आप को असेस करें कि आप में क्या वीकनेस है, उस एरिया में अपने आप को डेवलप करें. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं आती, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन कर लें. आपको सॉफ्ट स्किल्स नहीं आते, आपकी लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमजोरी है. बहुत से इंजीनियर्स को बोलना नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं है. तो भाई टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन करें. पाकिस्तान के तमाम एरियाज में टोस्ट मास्टर क्लब्स अवेलेबल हैं, जहां जाके आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, लीडरशिप स्किल्स को. फिर आप देखिए आपको क्या चाहिए. अब मैं बात कर रहा था इस शुरू होने से पहले कि एप्लीकेशन ऑफ एजाइल एटलीस्ट फॉर ऑल इंजीनियर्स, वैसे तो तमाम प्रोजेक्ट्स ऑल फील्ड्स के लिए जरूरी है. आजकल पीएमआई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने अपनी जो स्टैंडर्ड है उसको मुकम्मल रेवोल्यूशनाइज कर दी है. उन्होंने कहा खत्म हो गया पुराना मेथड, अब सब कुछ एजाइल होगा. अभी सवाल उन्होंने ऑन ने कहा कि ये तो शायद सॉफ्टवेयर के लिए होता है. सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता भाई, सॉफ्टवेयर के लिए नहीं होता. ये दिस इज फॉर एवरीवन. ये एक माइंडसेट है, ये एक दिमाग आपने बिल्कुल नए तरीके से, मुझे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स, उस तरह सोचने की बात है. तो बिल्कुल जनाब, हर चीज में सर्टिफिकेशन है. एजाइल की इंतहा है सर्टिफिकेशन की मार्केट में, एक लेवल से आखिरी लेवल तक. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत सी चीजें अवेलेबल हैं, सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सी चीजें हैं, और आप अपने पर्टिनेंट टॉपिक से अराउंड देखें क्या क्या नजर आता है, उसमें आप अपनी सर्टिफिकेशन करें. That's it. Sir, thank you very much. I would like to move on to Mr. Suhail Islam Khan वापस. सर, आपसे मैं सर की बात से आगे ये क्वेश्चन लेकर जाना चाहूँगा कि जब भी कोई नया ग्रेजुएट आता है मार्केट, उसको ये चीज़ पता नहीं होती कि मेरे एम्प्लॉयर की मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और एम्प्लॉयर जो है वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है. इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल उसकी जॉब हंटिंग में और उसको जॉब मिलने में. सर, तो इस चीज़ को सर आप किस तरह एक मतलब हमारे जितने भी यंग ग्रेजुएट्स हैं, नंबर ऑफ देम आर जॉइनिंग अस, जो अभी जून जुलाई में ही उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है एंड दे आर इन द जॉब मार्केट राइट नाउ, तो वो एम्प्लॉयर को किस तरह एसेस करे, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और अपने आप को उसमें किस तरह पिच इन करें. वुड यू लाइक टू
throw some light on that, please, sir? Sir, most in. जी actually this problem is quite complicated. हम लोग असल में जब पास आउट होते हैं और इंडस्ट्री को जॉब मार्केट को अप्रोच करने जाते हैं तो हमारे यहाँ पे लोग कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस लेके चले जाते हैं कि जी अगर हमारे पास कोई सिफारिश होगी या हमें कोई जानता होगा तो शायद हमें कभी जॉब मिलेगी। अगर जी मैं टॉपर हूँ या मेरा 4 GPA है या मेरा बहुत अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड है तो मुझे शायद तभी जॉब मिलेगी। कुछ प्रॉब्लम बल्कि काफ़ी हद तक इस प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयर्स जैसे। वो जब जॉब एडवर्टाइज करते हैं और उसके साथ जो उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी होती है वो बड़ी स्टैंडर्ड सी टिपिकल सी वो हर जॉब के साथ एक ही तरह की जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ जनरली आजकल की मार्केट में वैसे ही कम होती हैं। आज से 15 साल पहले या 13-14 साल पहले जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे काफ़ी बूम था और टेलीकॉम सेक्टर हमारा एक्सपेंड कर रहा था तो उस वक्त तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को बड़ी लुक्रेटिव जॉब्स मिल जाती थी। अब सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है लेकिन देखें आप सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे ख्याल में किसी फ्रेश ग्रेजुएट को जिस चीज़ की ज़रूरत है दैट इज़ द राइट माइंड। आप इस नेगेटिविटी और इस बॉटलनेक को जहन में रखे बगैर आप रखते हुए आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। यू हैव टू रिमूव दैट मेंटल हर्डल। ये मेंटल बैरियर आपको हटाना पड़ेगा। दैट इज द स्टेप नंबर 1। उसके बाद आप से मिलने से पहले कोई एम्प्लॉयर आपकी पेपर सेल्फ को मिलता है दैट इज अ रेज्यूमे। व्हाटएवर यू प्रेजेंट एज अ रेज्यूमे एज अ कवर लेटर दैट मीन्स अ लॉट। सो हम लोग जो हैं वो बहुत छोटी चीज़ों को इतनी अहमियत नहीं देते आजकल। अभी हमारे साथ जितने साथी मौजूद हैं लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर तो अगर आप में से किसी का आज ईमेल एड्रेस है स्कॉर्पियन अगस्त 2020 तो प्लीज चेंज कर दें, इट डजंट लुक गुड। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि शायद आपको जॉब नहीं मिलेगी, बट इट डजंट give a professional impression, the impression that you're trying to give, it doesn't convey that message, and there are so many things like that कि जैसे सोहेल साहब ने बात की, आपको किसी को एंगेज करने का तरीका नहीं आता, आपको एक बेसिक लेवल का एक अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो एक बंदे को एग्जूट करना चाहिए, जो एक फ्रेश ग्रेजुएट को पता होता है कि यार ठीक है, आई वर्क hard for 4 years, you know, okay, I don't know everything but I know something, so that belief in yourself should be there. ये थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अच्छे इदारों के स्टूडेंट्स में ये चीज़ें निस्बतन मौजूद हैं, लेकिन सोहेल साहब ने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है कि ये अच्छे इदारों के स्टूडेंट्स में भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हम लोग बहुत सारी चीज़ें 10 साल 15 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद सीखते हैं। हमें लोगों से मिलने के बाद, फॉरनर से बात करने के बाद, कल्चर्ड लोगों से मिलने के बाद हमें एहसास होता है कि हमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, हमारी पेपर सेल्फ को कैसा होना चाहिए, हमारी फिजिकल सेल्फ को कैसा होना चाहिए। तो इसमें से आपको यू नीड टू हैव सर्टन स्किल्स आपके पास डे 1 से होने चाहिए। और सॉफ्ट स्किल्स जो हैं वो इंटरव्यूज में आई बिलीव कि आपके टेक्निकल स्किल्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर फ्रेश ग्रेजुएट। क्योंकि हमें एज एन इंटरव्यूअर, जब मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा होता हूँ एज एन इंटरव्यूअर, मुझे पता होता है कि इसको इंडस्ट्री के शायद प्रॉब्लम्स का नहीं पता, इसके पास जितना नॉलेज जिस वक्त है वो टेक्निकल लेकिन बुकिश नॉलेज है। तो मुझे क्या चाहिए होता है कि मुझे चाहिए होता है ऐसा लड़का, जो ऐसा स्टूडेंट, ऐसा एम्प्लॉई जो जिसके अंदर मेहनत करने की कैपेसिटी हो, जिसमें सीखने की कैपेसिटी हो,
जिसमें कॉन्फिडेंस हो, जिसमें जो फोर्थ कमिंग हो। यानी अगर मैं उसको ये कहता हूँ कि यार ओके आपकी जॉब है लेट्स सपोज एमएस प्रोजेक्ट पे एक प्रोजेक्ट को प्लान करना, लेकिन अगर मैं उसको कहता हूँ कि नहीं जी आप जाके प्रोजेक्ट विजिट करके हैं, वो ये ना कहे कि जी नहीं सर मैं तो एसी वाले कमरे में बैठ के कंप्यूटर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए आया हूँ या एमएस प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। he should be ready to perform a multiple roles अस्सलामुअलैकुम। at the same time. सॉफ्ट स्किल्स बहुत अल्लाह का इम्पोर्टेंट है, शुक्र। साथ ही साथ आपके हार्ड स्किल्स, आपके टेक्निकल स्किल्स मैं- भी इम्पोर्टेंट है। तो आप जिस सब कुछ जॉब ठीक को चल रहा है। अप्रोच करने के जा रहे आसिया हैं टून आप पड़ी उसके हुई है। बारे में कुछ पढ़ के जाएं, हाँ। कुछ जान के जाएं, क्योंकि बस आज बेचारी जो ने बंदा बहुत आपका काम इंटरव्यू किया, करेगा कोटा गई थी। और नोइंग दैट यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट, गई वो है। आपसे कुछ टेक्निकल हाँ। क्वेश्चंस जरूर करेगा। सामान तो मैं ले आया Uh, हूँ, ये वैसे गई थी। हाँ ले एंड आई। इफ यू आर अनफॉर्चुनेट मजाक कर। हो सकता है आपके सामने नहीं, एक नहीं, ऐसा खुद बंदा उसने बैठा हो किया जो था बिल्कुल यार, कन्वेंशनल मजाक हो और कर वो रहा आपको हूँ। यानी हाँ। इंजीनियरिंग की जुबान में अगर मैं बात करूं तो आपको एक टीम बना के दे दे और कहे कि जी अब बनाएं इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स और वो टेक्निकल कैलकुलेशंस दिखाएं मुझे इसके अंदर कहाँ है, उठती है तो फिर कॉल वो बैक शायद करते इतना हैं। ज़्यादा भी सेहती क्या आपकी? टेक्निकल स्किल्स आपके चेक करे। लेकिन जनरली अगर आप, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी से। आई सर्व देयर फॉर मोर देन 11 years और मेरा फ्राइडे को रिजल्ट आया था और मेरा मंडे वाले दिन इंटरव्यू था। कोई सिफारिश नहीं थी, मैं किसी को नहीं जानता था। सामने एक जनरल साहब बैठे थे, जनरल इम्तियाज जो बाद में बीजी हुए एनएलसी के कमांडेंट भी थे मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ट्रस्ट के, बतौर एनएचए के चेयरमैन वो थे और उनके साथ सेक्रेटरी साहिबान थे। बड़ा लंबा चौड़ा पैनल था। सॉइल इंजीनियरिंग के हवाले से मेरा प्रोजेक्ट था, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स का, और जनरल साहब जो थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ अर्बाना शैम्पेन से सॉइल इंजीनियरिंग में पीएचडी थे। he just took that book, तो मैं उनके पास लेके गया कि सर मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, मेरे पास एक दिन का फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे कोई फील्ड की चीज़ों का नहीं पता। तो कहते अच्छा चलें बुक से पूछ लेते हैं। और उन्होंने जब वो बुक खोल के मेरे से सवाल करना शुरू किए, 2 सवाल किए मुझे दोनों ने। जब टेक्निकल स्किल्स को देखा जाता तो मैं तो उसमें में खेलता, लेकिन हैविंग सेड दैट आपके पास आपका बेसिक नॉलेज जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो भी होने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ। आप जब एक सीनियर के सामने बैठते हैं, हाउ डू यू मेक हिम फील अबाउट योरसेल्फ। वो क्या इंप्रेशन लेता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आपका वो जब पेपर सीवी पढ़ता है तो वो उसको देख के वो क्या इंप्रेशन लेता है। यंग जितने लोग हैं वो अपने सीनियर्स को के साथ इन टच रहें। लिंक्डइन बड़ा ज़बरदस्त प्रोफाइल है, लोगों को वहाँ पे अप्रोच करें। अगर आपके पास आपके दोस्तों में या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको सीवी राइटिंग के ऊपर गाइड कर सके, लेट मी टेल यू, आप अगर आपके 100 कनेक्शंस हैं लिंक्डइन पे और आप 50 लोगों को अपना सीवी भेजते हैं सिर्फ इसलिए जॉब के लिए नहीं, आप इसलिए भेजें कि जी इस पर कोई कमेंट कर दें, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर दें, 50 में से एक आदमी ज़रूर कर देगा और आपके पास कोई एक कमेंट कोई रिव्यू होगा।
उसको दिल पे मत लें, उसको टेक इट इन स्ट्राइड और उसको इम्प्रूव करें। गूगल कर लें, बेशुमार आजकल ट्यूटोरियल्स पढ़ें। तो ये जो आपकी सॉफ्ट साइड है इसको एनहांस करें, इस पे काम करें। सर ने जैसे कहा कि ये अनफॉर्चुनेट है कि हमें इदारे हमारे नहीं सिखाते, लेकिन शिफ्टिंग पैराडाइम की खूबसूरती ये है कि अब आज का नौजवान जो है वो इदारों पे डिपेंडेंट भी नहीं। अगर आप में कुछ सीखने की लगन है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास इतना कुछ है सीखने के लिए कि दिस लाइफ टाइम वुड बी इनफ फॉर यू। अगर आप सिर्फ एक टॉपिक भी कोई सीखना चाहें तो ये सारी जिंदगी जो आपके पास 70-80 साल की जिंदगी अवेलेबल है, ये भी काफी नहीं है, इतना नॉलेज अवेलेबल है, लेकिन आप सीखने वाले बने। So the right attitude, soft skills, and yes, some basic software skills. That mix is very important, and the right in this mix in the right proportion is very crucial for the fresh graduate. मैं सर उनके हवाले से आपसे सवाल करना चाहूंगा कि डिसीजन मेकिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कैरियर मेकिंग। आप अपने कैरियर में एडवांसमेंट नहीं ला सकते हो जब आप राइट टाइम पे राइट डिसीजन करो, और उस डिसीजन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट आपके करियर पे होता है। तो सर इस बारे में प्लीज गाइड कीजिएगा कि डिसीजंस इन्फॉर्म डिसीजंस किस तरह से लेने हैं, किस मौके पर सिनेरियोज अगर आते हैं तो उसको किस तरह से टैकल करने की जरूरत है, प्रेशर्स को किस तरह टैकल करने की जरूरत है, एंड जाहिर बात है मॉनेटरी टर्म्स को किस हद तक देखने की जरूरत है। इफ यू कैन प्लीज गाइड अस ऑन दैट। बिल्कुल जनाब, देखें बात यह है कि जब आप ह्यूमन डीलिंग की बात करते हैं, अपनी जात की भी बात करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी साइकोलॉजी आ जाती है। आपको दूसरों को समझने के अलावा अपने आप को भी समझने की जरूरत है, कब किसके सामने क्या बात करनी है। बल्कि इसको आजकल की जो बिजनेस लैंग्वेज है उसमें कहते हैं पॉलिटिकल एक्यूमेन, कि आपको लोगों से इंटरेक्ट करने का क्या तजर्बा है या क्या आप आर्ट है आपके पास। देखें, आपका बॉस गुस्से में बैठा है और आप जाके उसको पेश करते हैं, सर ये प्लीज देख लेना, वो लाजिम में तपेगा नहीं तो और क्या करेगा। तो इतनी अकल होनी चाहिए कि मौका माल देखकर सही वक्त पे सही काम किया जा सके। तो डिसीजन मेकिंग तो यहाँ पे शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है कि अगर आपके पास कॉमन सेंस नाम की चीज मौजूद है तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली। दूसरी बात यह है कि अभी अगर आप थोड़ा इसके लिए जरूरी जो चीज है वो है तहम्मुल। कभी भी एब्रप्टली एक बात पे फौरन डिसीजन ना करें। ज़हन में ख्याल आता है मुझे ये कर लेना चाहिए, रुक जाएं, गिव इट अ सेकंड थॉट, थिंक अगेन। दूसरी दफा में जो काम करेंगे वो फिर थोड़ा स्टेबल होगा। इसी तरह आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, कोई और चीज करने जा रहे हैं, डोंट जस्ट जंप ऑन एवरी अपॉर्चुनिटी। देखिए, ये समझने की जरूरत है कि आप कौन हैं। आप वो नहीं हैं जिसने पहले अप्लाई किया था और जो सिलेक्ट हो गया था। You are a different person. You may not need a job in this organization. Look for the appropriate organization जो आपके skills और जरूरियात के हिसाब से बनी हुई है। पहले देखिए आपकी स्पेशलिटी क्या है। इंजीनियर तो आप हैं, लेकिन इसके अलावा आपकी क्या स्पेशलिटी है? क्या आप ड्रीमर हैं? आप किस किस्म के इंसान हैं? आप तजर्बे करना चाहते हैं?
ये हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो तजुर्बों को अलाउ नहीं करती वो अच्छी नहीं आती। हो सकता है कम सैलरी पे आप ज्यादा तजर्बे करने के लिए कहीं जाने, जैसे इन्होंने मोहसिन ने बताया कि जी मैं तो नॉर्दर्न एरिया भी जाने को तैयार था। तो बात ये कि यही वो की होती है जो क्लिक कर जाती है आप क्या चाहते हैं, और ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मैं चाहता हूँ मुताबिक लोगों को सिलेक्ट करती हैं। जहां आपका लगेगा उस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेंगे तो वो जैसे कहते हैं ना कि आपका जॉब आपका पैशन बन जाए, और वहां के लोगों को भी इस बात का एहसास होगा ये सही बंदा है अभी, और इस तरीके के साथ आप सही जगह सही डिसीजन करने के काबिल होंगे। ये जॉब सर्चिंग के लिए भी है और ये जॉब की रिटेंशन के लिए भी है। तो ये चीज अपने जहन में रखिएगा। देखिए जॉब रिटेंशन के लिए हमें इस बात थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखना है, और ये भी देखना है कि जॉब मुझे चेंज लेना चाहिए। ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि भाई कंसंट्रेशन हो गई है ऑर्गेनाइजेशन में, मुझे अपवर्ड मोबिलिटी नहीं मिल रही, मुझे मजीद प्रमोशंस की जगह ही बाकी नहीं बची, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मैं साथ कि कंपनी लॉयल्टी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पूरी जिंदगी एक ही कंपनी में गुजार दी, पूरी जिंदगी, और उसी के जाके वो अल्टीमेटली हेड बन गए। दिस इज ब्यूटीफुल। ऐसी कंपनियां आजकल के एम्प्लॉय को बताएं जो 10 साल की नौकरी में 10 कंपनियां बदल चुका होता है। उसकी देखिए ये कोई कमाल नहीं है कि मैंने 10 कंपनियां देख ली, कमाल ये है कि आप में कंसिस्टेंसी कितनी है। किसी वजह से चेंज की, एक दफा कर ली, 2 दफा कर ली, भाई 10 साल में 10 दफा। मैं तो उस बंदे को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट जो इस बहुत अच्छा लॉयल रहे और नहीं अपने आप को ग्रूम करे अनटिल एंड अनलेस आपके अपवर्ड मोबिलिटी के चांसेस बंद हो जाएं। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन खुद कहेंगी भाई जाओ, हम तुम्हें ऊपर नहीं ले जा सकते, जहां तक पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब तुम यहां से जाओ और कहीं इससे बेहतर जगह पे जाओ। और ऐसी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन जब आपको छोड़ती हैं तो आपको ऐसा आला दाना बना के छोड़ती हैं कि आपको कोई भी उठाने को तैयार हो जाता है। और फिर साथ वो जो बात मोहसिन ने भी की कि हमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपनी खुद करनी है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं लेकिन उनके अपने देखिए उनका डायमेंशन और है, उन्होंने अपने काम के हिसाब से करना है। आपने कुछ और चीजें भी देखनी है, आपने ग्रो भी तो करना है ना, आपने ग्रूम भी करना है। सॉफ्ट स्किल में कहाँ है, अपने आप को मुसलसल एनालाइज करवाते रहें या अपने आप को असेस कि मेरे में कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, वो अपना जाती तौर पे आप स्वॉट एनालिसिस करते रहें और ईयरली बेसिस के ऊपर डिसाइड करेंगे जी इस साल मैंने ये कमाल करना है। मतलब जिसे कहते हैं हॉबी की तरह, जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपनी जगह, थोड़ी सी जाती डेवलपमेंट भी साथ साथ चलती रहनी चाहिए। तो ये जनाब आपकी डिसीजन मेकिंग का सारा क्रक्स है। Thank you so much, Mr. Mohsen and Mr. Suhail, who have talked about the personal and professional development as well as industry inside Paradigm. Now let's move towards another important aspect, that is brand me. Mr. Adil, who is a certified trainer and working as HR business partner in Nestle, will enlighten us about CV writing, interview skills, and job hunting techniques. Mr. Adil, how can a graduate brand themselves in a job market which is ever-changing and hugely competitive? And what is the next step to set yourself apart and land into a job which is your dream job and excel at it? And last but not the least, how important are the technical skills versus soft skills? Mr. Heather. Thank you very much for very elaborative question. First of all, I would like to really thank all the association who has arranged this session. Secondly, it was a great learning opportunity. Mashallah, Suhail Iqbal Sahab is sitting with us, and it's a leverage to sit with him on this platform. Your learnings were really helpful for us, Suhail Sahab, and Mohsin, thank you very much to you as well. आई थिंक हम सारे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, इट्स नॉट अ वन वे सेशन। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ टीचिंग मोड पे हैं, वी आर आल्सो इन अ कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। और जो आजकल की जनरेशन है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं इस वक्त, यू गाइज आर मच मोर स्मार्टर देन अस। मेरा इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उसमें से ज़्यादातर जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर का है। आई एम वर्किंग इन नेस्ले। उससे पहले थोड़ा सा मैंने
अटक ऑयल ग्रुप ऑफ कंपनीज में काम किया एंड माय वेरी फर्स्ट जॉब वाज इन अ कॉल सेंटर। आई एम अ केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड आई डिड माय मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फ्रॉम नास्ट, और उसके बाद आई एम करंटली डूइंग एमबीए एज वेल फ्रॉम लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। थोड़ा सा करियर वाइज जिस तरह से मोहसिन भी बता रहे थे और सुहेल साहब भी बता रहे थे, आई हैव टेकन अ शिफ्ट। आई स्टार्टेड फ्रॉम हार्डकोर इंजीनियरिंग जॉब और प्रोडक्शन एरिया के अंदर मैं काम करता था, एंड आफ्टर दैट जिस तरह सुहेल साहब कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को भी एक्सप्लोर करते हैं, विद द टाइम यू लर्न अबाउट योरसेल्फ एज वेल। सो आई ऑल्सो एक्सप्लोर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड विद टाइम आई रियलाइज के जो स्ट्रेंथ्स हैं आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देम बियॉन्ड टेक्निकल एज वेल। सो वो जैसे कहते हैं सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो टेक्निकल से बाहर निकला एंड व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ, तो काफ़ी सारे दोस्तों का भी फीडबैक ऐसा था कि आई मूव टू ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। सो ट्रेनिंग के अंदर और ऑडिट के अंदर कुछ अरसा गुजारा, और जब टेक्निकल के बियॉन्ड कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को समझना शुरू किया, जिसमें सेल्स का डिपार्टमेंट था, जिसमें मार्केटिंग का डिपार्टमेंट था, फाइनेंस था, ऑडिट और ट्रेनिंग के सिलसिले में जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता था, तो वो परसेप्शन जो है वो हमारे जो एक प्री कंसीव नोशन की मोहसिन ने बात की थी था कि जी बस फैक्ट्रियां चल रही हैं, टेक्निकल चल रहा है या इंजीनियरिंग वाले चला रहे हैं तो सब कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है, हर डिपार्टमेंट का एक अपना रोल है, एंड द मोर यू गेट क्लोजर द मोर यू अंडरस्टैंड। सो करते करते कुछ मेरी नेचुरल प्रेफरेंसेस इस तरह से थी कि आई डिसाइडेड कि आई कैन ऐड मोर वैल्यू इफ आई मूव टू द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ पीपल। सो करियर जो है वो माय ऑर्गेनाइजेशन वाज काइंड इनफ कि उन्होंने रिस्क भी लिया। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशंस भी कैलकुलेटेड रिस्क लेती हैं, बट दे वर काइंड इनफ। तमाम ऑर्गेनाइजेशंस नहीं लेती, बट आई एम थैंकफुल टू देम कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, एंड फॉर द लास्ट 1.5 ईयर आई एम वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट। मेरी जो अभी तक का एक्सपीरियंस है 8-9 साल का, उसमें जो सबसे बड़ी लर्निंग रही है वो रही है अंडरस्टैंडिंग द बिग पिक्चर। टेक्निकल यूजुअली जो हम लोग सारे इस वक्त नस्ट के स्टूडेंट्स हैं, मेजॉरिटी टेक्निकल बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं, वी आर ट्रेन्ड फॉर 4 years टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटीज। लेकिन वो जो बिग पिक्चर है कि इकोनॉमी मुल्क की किस तरह से चलती है, एनवायरनमेंट किस तरीके से चलता है, जो डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे जाने से इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट आता है, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो समझने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है, या वो हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, उनको हम नहीं समझ पाते। सो मेरी जो अभी तक की लर्निंग है वो ये कि अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट जिसके अंदर स्पेशली प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। तो जिस तरह मोहसिन भी बता रहे थे कि मैं वही एम्प्लॉय जो है वो सिलेक्ट करूंगा जिसको मेरे एरियाज का पता है या जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि यू पुट योर फीट इन द शूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि व्हाट चैलेंजेस आर दे गोइंग थ्रू। जब आप उन चैलेंजेस को समझेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन किस चैलेंज से गुजर रही है, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ कैन आई हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप वो अंडरस्टैंड करेंगे हाउ कैन यू हेल्प, तभी आप वो स्किल सेट और वो माइंड सेट बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, और वहाँ से सीवी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग सीवी राइटिंग की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, मेरे ज़ाती ओपिनियन है कि सीवी राइटिंग से ज़्यादा सीवी बिल्डिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपने उसके अंदर कंटेंट क्या डाला हुआ है, आपने उसका फॉन्ट ग्रीन करना है, ब्लू करना है, टेक्स्ट कैसे करना है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि ऐसा ना हो कि आपका सीवी देखने में ही इतना अट्रैक्टिव ना हो कि एम्प्लॉयर विद इन फ्यू सेकंड्स उसको रिजेक्ट कर दे, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। मैं उसको अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन सीवी बिल्डिंग के अंदर जो है वो साल लग जाते हैं और बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है। आप एक 3 महीने की कॉन्फ्रेंस या एक सर्टिफिकेशन अटेंड करते हैं तो आपकी सीवी के अंदर एक लाइन ऐड होती है। सो यू रियली नीड टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट इन सीवी बिल्डिंग एज वेल। फ्लेक्सिबिलिटी की मोहसिन ने बात की। फ्लेक्सिबिलिटी आई वुड से कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपने जब जॉब सिलेक्शन करनी होती है। पैशन हम सारों को यही होता है कि फ्रॉम डे फर्स्ट जो है वो हमारी जॉब लग जाए, लेकिन बहुत से यंग ग्रेजुएट से या बहुत से स्टूडेंट्स से जब बात होती है तो दे आर नॉट विलिंग टू डू एनी जॉब विच इज़ नॉट ऑफ देयर हार्डकोर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एनवायरनमेंट पढ़ा है 4 साल, तो वो कभी सोचते नहीं है कि हम एनवायरनमेंट के अलावा भी कोई जॉब कर सकते हैं, हालांकि दिस इज वेरी मच पॉसिबल। देखें, आज से 4 साल पहले आपको एनवायरनमेंट भी तो नहीं आती थी, आपने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ असाइनमेंट्स की, कोई क्विज किया और आपने एनवायरनमेंट सीख लिया। सो अब अगर आपको स्लाइटली डिफरेंट या किसी और ऐसी फील्ड में जॉब मिल रही है तो यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि यार मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है, थैंक्स टू गूगल टुडे मेरे पास बुक्स अवेलेबल है। मैं किसी वेबसाइट पर जाके, जिस तरह मैं पेपर से पहले भी तो हम 2-3 रातें ही पढ़ते हैं ना, तो उस तरह से अगर मैं डिफरेंट कोई फील्ड पढ़ूंगा तो यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस कि यार ठीक है, अगर मैंने कोई एक सब्जेक्ट अपने बैचलर्स में नहीं पढ़ा, आई कैन स्टिल डू द जॉब, आई हैव द लर्निंग एजिलिटी। लर्निंग एजिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इसी के साथ जो मेंटल बैरियर है, मेंटल बैरियर इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके
अंदर किसी किस्म का मेंटल बैरियर नहीं होना चाहिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता। थोड़ा सा मैं इसको अगर स्ट्रक्चर कर दूं, सीवी जो है उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है और हम स्पेसिफिकली उस पर इसलिए बात करते हैं क्योंकि जैसे कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीवी आपको जॉब लेने में हेल्प नहीं करती। सीवी का हार्डकोर पर्पस ये होता है कि आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए। सो इंटरव्यू कॉल तक आपकी सीवी का रोल होता है। आफ्टर द इंटरव्यू देन देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स जो आपको सक्सेसफुल कराएंगी। एक बड़ा सिंपल सा मॉडल है, आप अपनी सीवी देख के अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, उसको आइडा मॉडल कहते हैं, इट्स AIDA। सो आपकी सीवी जब कोई देखे, बिलीव यू मी कि जब हम पोजीशंस एडवर्टाइज करते हैं तो एक एक पोजीशन के लिए 600 700 लोगों की एप्लीकेशंस आती हैं, और ये हम उनकी बात करें जहाँ पे ग्रेजुएट्स और मास्टर्स चाहिए होते हैं। नॉन स्किल्ड के लिए तो थाउजेंड्स में आ रही होती हैं। सो बहुत लेस देन 30 सेकंड्स का टाइम होता है जब एक रिक्रूटर जो है वो सीवी को देख रहा होता है। तो योर सीवी शुड बी वेरी अट्रैक्टिव। आपकी जब नजर पड़ती है ना, जिस तरह ये टीवी वाले जो हैं ये आइडा मॉडल पे खेल रहे होते हैं कि वो खबर आपकी ऐसे अखबार में या टीवी पे लगाते हैं कि आप ऐसे करके ना रुक जाते हैं 2 मिनट के लिए टीवी स्क्रीन के अलावे। वो अलग बात है, कभी कभी 5 मिनट सुनते हैं तो पता चलता है जी कुछ भी उसमें से नहीं निकला, ऐसी बड़ी चीज। सो अटेंशन जो है वो आपकी ग्रैब करनी चाहिए आपकी सीवी को, कि जब कोई बंदा उठाए तो एकदम उसकी नजर पड़े। ऐसा ना हो कि आपने एक बहुत बड़ा गूगल से करियर एस्पिरेशन का एक पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दी है जी, वेरी एम्बिशियस एंड वांट टू परस्यू माय करियर, बड़ी वो थ्योरेटिकल किस्म की मोटी मोटी 5-6 लाइनें उसके ऊपर लिखी हुई होती हैं। मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट तो कोई नहीं देता, लेकिन अपने बिहाफ पे मैं कह सकता हूँ कि उस पर कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता पढ़ने के लिए। तो आप उसको बिल्कुल 1 लाइनर 2 लाइनर लिखें और आपका वो अपना होना चाहिए, कैंडिड होना चाहिए, वो इंटरनेट से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि एकदम जब वो अटेंशन सीख करे तो पढ़ने वाले का इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो। दैट इज द आई ऑफ द आइडा मॉडल। सो जब उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, सो उसके बाद फिर आपकी डिटेल्स स्टार्ट होती हैं कि आपके पास क्या स्किल है, आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। There you need to customize your CV as well. Customization is really very important. बहुत से कैंडिडेट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने एक सीवी का प्रोफाइल बना के रखा हुआ होता है एंड दे अपलोड इट टू एनी जॉब वैकेंसी। वो जिस भी सेक्टर की हो उसमें वो वही की वही सीवी अपलोड कर देते हैं। इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया। सो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को किन वैल्यूज की जरूरत है, उस ऑर्गेनाइजेशन को किस स्किल सेट की जरूरत है, उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है। यू कस्टमाइज योर सीवी अकॉर्डिंगली। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ब्रांडिंग का क्वेश्चन किया था। ब्रांडिंग से एक्चुअली जो मुराद है वो ये है कि देखें, यू मे नॉट लाइक द एग्जांपल बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी मोर और लेस जो उसका डिसीजन होता है हमारे माइंड के अंदर वो वैसा हो रहा होता है जैसे हम डिसीजन लेते हैं किसी शॉपिंग मॉल में जाके या किसी शेल्फ के ऊपर व्हेन वी चूज अ प्रोडक्ट। सो आपके सामने जैसे एक शेल्फ के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं, सो आप सबसे पहले तो दूर से देखते हैं आपको एक प्रोडक्ट अट्रैक्ट करती है। वो क्या चीज अट्रैक्ट कर रही होती है? उसकी पैकेजिंग अट्रैक्ट कर रही होती है। लेट्स सपोज देयर इज अ शैम्पू, तो आपने वो शैम्पू भी यूज करके तो नहीं देखा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई नया ब्रांड है, सो सबसे पहले आप उसकी पैकेजिंग देखते हैं कि हाउ मच अट्रैक्टिव इट इज। उसकी पैकेजिंग होती है तो आप उसके लेबल तक जाते हैं कि किस कंपनी ने बनाया, आप उसकी लेबल की डिटेल्स पढ़ते हैं। और जो उसका एक्चुअल प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस होता है वो तो 3rd 4th लेवल पे आता है। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप एज एन एम्प्लॉय भी जा रहे हैं, सो यू बिल्ड योर ब्रांड इन सच अ वे, जिस तरह सॉफ्ट स्किल्स की बात हो रही थी, वो सॉफ्ट स्किल्स क्या है? वो बेसिकली हमारा पैकेजिंग मटेरियल है। कितना अच्छा मैं एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हूँ या कितना अच्छा मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ, ये तो उस वक्त पता चलेगा ना जब मैं जॉब पे पहुंच जाऊंगा। अभी तो सीवी है, तो वहां पे तो मेरे सॉफ्ट स्किल्स, अभी तो मेरे इंटरव्यू उस पे मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स चल रहे हैं। सो दैट इज आल्सो लाइक जिस तरह पैकेजिंग मटेरियल होता है किसी प्रोडक्ट का। सेकेंडली, जब आप सीवी से बढ़ के इंटरव्यू स्टेज पे जाते हैं तो बहुत से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब भी जाएं यू गो प्रिपेयर्ड, आप अपनी कंपनी के बारे में पढ़ के जाएं। जितना आप उनकी कंपनी को, आप उनके चैलेंजेस उतना ही बेहतर आप अपने आर्गुमेंट्स को, अपने एग्जांपल्स को स्टेट कर सकेंगे, बिकॉज यू नो द नीड ऑफ द कस्टमर। वो कस्टमर है ना, उसको आपने सर्विसेज देनी है। जब तक आप उसकी नीड नहीं पता होगी तो आप अपनी पोजीशन नहीं ले सकेंगे। सेकेंडली, सुहेल साहब ने बहुत एक अच्छी बात की, इन्होंने पॉलिटिकल एक्यूमेन का उसको आई थिंक फ्रेज यूज की थी। इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ इशारा था सुहेल साहब का। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आईक्यू जो है, क्योंकि जैसे जैसे हम पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, जो क्वालिटीज या जो सिलेक्शन क्राइटेरिया आज से 15 साल या 20 साल पहले कंपनीज देख रही होती थी, आज वो उससे ज्यादा देख रही हैं।
फॉर एग्जांपल हम जब कुछ अर्सा पहले मोबाइल लेने जाते थे तो मोबाइल के साथ जब उसका वो बैक कवर या ऊपर प्रोटेक्टर फ्री मिलता था तो हम बहुत खुश होते थे। कंज्यूमर उससे बड़ा एक्साइटेड होता था, यार मुझे जो है ना दोबारा नहीं रुकना पड़ेगा और ये चीज़ मुझे खुद ब खुद मिल गई है, प्रोटेक्टर एंड सिलिकॉन कवर। लेकिन आज जब वो उसके अंदर से निकलती है तो हम उस तरीके से खुश नहीं होते, हालांकि चीज़ तो वही है। व्हाट हैज़ चेंज्ड? आवर एक्सपेक्टेशन हैज़ चेंज्ड। इसी तरह से पहले किसी जगह पे जब हमें वाईफाई मिलता था तो हम बड़े एक्साइटेड होते थे। आज हमें अगर किसी जगह पे वाईफाई ना मिले तो हम कंप्लेन करते हैं बिकॉज वी थिंक इट्स अ हाइजीन फैक्टर, इट्स अ मैंडेटरी आइटम। इसी तरह से जो स्किल सेट पहले बहुत सेलिंग होता था, जो बहुत अट्रैक्टिव होता था, आज वो स्किल्स जो हैं वो दे आर बेसिक फैक्टर्स। सो इसी तरीके से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो इट्स द न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज वर्ल्ड। IQ, हार्ड वर्किंग, स्मार्ट वर्किंग, ये सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ कंपोनेंट्स हैं, इसको पढ़िएगा डिटेल में, देयर आर वेरी गुड आर्टिकल्स ऑफ हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू एज वेल। लेकिन उसमें से एक एलिमेंट वो भी है जिसकी सुहेल साहब ने बात की थी कि अपना स्वॉट एनालिसिस करें, जिसको हम सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, कि आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, ये भी एक बड़ा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इंटरव्यू का कि जी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपके ख्याल में आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं। ऑल्दो ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होती, क्योंकि इस क्वेश्चन पे आप बहुत सारी चीजें गेज कर लेते हैं कैंडिडेट की। आप ये गेज कर लेते हैं कि इसकी सेल्फ अवेयरनेस कितनी स्ट्रांग है, ये परफेक्शनिस्ट है, आइडियलिस्ट है, या ये गो गेटर है कि जी मैंने काम निकालना है। अगर कोई सेल्स का हेड बैठा हुआ है तो ही वुड हायर अ पर्सन जो वॉल्यूम्स को अचीव करता है, उसको रिजल्ट चाहिए। लेकिन अगर कोई क्वालिटी एश्योरेंस का या रिसर्च का बंदा है, उसके लिए शायद वो एक परफेक्शनिस्ट और डीप डाइव जाने वाला बंदा जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट है। तो इट्स टोटली डिपेंडेंट कि आपको किस किस्म का बंदा चाहिए। फिर सेल्फ अवेयरनेस के साथ सेल्फ रेगुलेशन आ जाती है कि आप इमोशंस पे किस तरीके से अपने काबू रखते हैं। सम टाइम इंटरव्यू के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि जान के आपको प्रेशराइज किया जाता है, आपको थोड़ा सा इरिटेट किया जाता है, वो आपकी नर्व्स उस टाइम चेक कर रहे होते हैं कि हाउ वेल यू कैन परफॉर्म अंडर प्रेशर, हाउ वेल यू कैन परफॉर्म अंडर स्ट्रेस। अगर कोई बंदा आके से आपसे तलखी से बात करता है तो आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कैसे करते हैं? आप आगे से ठा जवाब मुंह पे मारते हैं अगले बंदे के, या आप काम रह के उसको रेगुलेट करके अपना जवाब देते हैं? सो दीज ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस आर रियली वेरी important in this case. जी जुल्करनैन। आई थिंक जुल्करनैन के इंटरनेट के साथ कोई इशू है। Sir Haider, I remember that there were some questions about the typical HR questions. I will continue on behalf of Zulkarnain since I think he has lost his connection. The typical questions when we go for interview, our youngsters, they tend to ask us about your weaknesses, your strengths, and why you. So and the first question is about introduce yourself. So people, when I have seen in my professional career as well, how people responds to this is my name is this, I am from this, I am a graduate of this, and my mother is a housewife and my father is this. So what is your take on this? I mean, what should be the answer? Concise, concrete, and covering all 7 C's of the communication, and the other part of it is about the weaknesses and strengths question. Adil, thank you very much. It's a very practical question, और as I said before कि कुछ frequently asked questions होते हैं interviews में, they are still valid. कुछ candidates इस सवाल का जवाब ऐसे start करते हैं कि जी as you know my name is this, और as you have read my CV. So जैसे आप as you know के नाम बोलते हैं, एक unconscious अगले बंदे को एक message आता है that like what is this? Are you being overconfident or what? You should be confident but humble at the same time, right? So I would always suggest कि as you know से हमें start नहीं करना चाहिए, जिस तरह बहुत से लोग sessions में आके start करते हैं जी as you, I mean if everyone knows can इंट्रोडक्शन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम सारे अपना अपना टेस्ट इस तरीके से ले सकते हैं कि यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और 2 मिनट अपने बारे में बोलिए। आप यकीन करें कि बड़ा मुश्किल हो जाता है 2 मिनट अपने बारे में बोलना। 4-5 लाइनें जो आपने अभी बताई हैं कि जी मेरी ये क्वालिफिकेशन है, मेरा ये स्किल है, उसके बाद हम 2 मिनट अपने बारे में नहीं बात कर सकते, हालांकि हमने कितने साल जिंदगी के गुजारे हैं। सो यूजुअली जब आप ये वाला टेस्ट करते हैं तो आपको ये भी अपने आप में एक रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं कि एक जवाब मिल जाता है
कि मैं क्या बेच रहा हूँ. मतलब if we are selling ourselves in an interview, तो मेरे पास क्या कंटेंट है बेचने के लिए. देन होता यह है कि हमारे सबकॉन्शियस में बैक ऑफ द माइंड बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब एब्रप्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का, तो हम नहीं बोल पाते. इसलिए प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट. यू फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस एंड की प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आप इंटेंशनली सोचें कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर बहुत सी क्वालिटीज रखी हैं, और उसमें से उन क्वालिटीज को ज्यादा हाईलाइट करें जो कि आप समझते हैं कि मार्केट में रेयर हैं. फॉर एग्जांपल जो वैल्यूज है ना, इंटेग्रिटी फॉर एग्जांपल, वो एक बहुत मे बी इट साउंड थ्योरेटिकल, बट इंटेग्रिटी इज रियली समथिंग व्हिच ऑर्गेनाइजेशंस आर लुकिंग फॉर. Honesty is really something which organizations are looking for. Flexibility is really something which organizations are looking for. So introduction के अंदर ऐसी चीजें बताइए, अपनी strengths बताइए कि जी मैंने आपकी organization को पढ़ा, मेरे अंदर ये attributes हैं which make me think I am the right fit for the organization. अपना skill set बताइए, अपना mindset बताइए कि positivity आपके लिए कितनी important है. पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो बहुत सी बीमारियों का इलाज है. इफ यू आर नेगेटिव तो आप हर चीज में वो एक नेगेटिव नोशन जो है वो पिक कर लेते हैं, बट इफ यू आर पॉजिटिव तो आप किसी ना किसी सिचुएशन के अंदर अपॉर्चुनिटी उठा लेते हैं. फॉर एग्जांपल करंट जो कोविड की सिचुएशन थी, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को मैं जानता हूं जहां पे वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स जो है वो सिर्फ फैंसी वर्ड्स थे एचआर की बुक्स के अंदर, और बिलखसूस जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड जो लोग थे वो समझते थे कि जी वर्क फ्रॉम होम का या फ्लेक्सिबल आवर्स का मतलब है कि छुट्टी पे जा रहे हैं एम्प्लॉय ना. तो लेकिन अब इस कोविड सिचुएशन के अंदर अपॉर्चुनिटी ये थी कि बाय फोर्स सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने वर्क फ्रॉम होम और फ्लेक्सिबल आवर्स को प्रैक्टिस किया. सो दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी. तो वो चेंज जो बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ला सके, वो इस अपॉर्चुनिटी इस सिचुएशन की वजह से वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई. सो इंट्रोडक्शन के अंदर आई थिंक आप अपने की स्किल्स को जरूर हाईलाइट करें. 3 किस्म के फिट को समझिए, उसके हिसाब से अपना इंट्रोडक्शन कराइए. एक होता है जॉब का फिट. फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट की पोजीशन एडवर्टाइज हुई है. सो टॉक 20 seconds अबाउट हाउ यू फिट दैट रोल एंड हाउ यू फिट दैट पोजीशन, how you're the right fit. Take next 20 seconds to talk about the ability how well you can fit in the team. So एक होता है उस जॉब या पोजीशन के अंदर फिट होना, फिर एक होता है उस टीम के अंदर फिट होना. अपनी कुछ टीम की क्वालिटीज बताइए कि आप टीम बिल्डिंग कैसे करते हैं, आप लोगों के साथ एंगेज कैसे करते हैं, कोलैबोरेशन कैसी है आपके अपने पीयर्स के साथ, हाउ वेल यू कैन रिसीव द फीडबैक, राइट. और थर्ड फिट है ऑर्गेनाइजेशन का. आप एटॉमिक एनर्जी ज्वाइन कर रहे हैं, दे माइट बी लुकिंग फॉर अ टोटली डिफरेंट माइंडसेट. आप फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं, दे माइट बी लुकिंग फॉर टोटली डिफरेंट माइंडसेट. आप एक एमएनसी को, कॉर्पोरेट सेक्टर को कर रहे हैं, दे माइट बी लुकिंग फॉर अ डिफरेंट माइंडसेट. उसके अंदर भी अगर अमेरिकन हेडक्वार्टर बेस्ड कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उनका माइंडसेट डिफरेंट होगा. ब्रिटिश हेडक्वार्टर बेस्ड माइंडसेट है, उसका डिफरेंट होगा. सो इट वेरीज अ लॉट कि आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसका ओरिजिन क्या है. सो 3 सेक्शंस के अंदर अपने आर्गुमेंट को आप डिफाइन करें. राइट फिट फॉर द जॉब, राइट फिट फॉर द टीम एंड राइट फिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. 20 seconds भी आप तीनों में बात करेंगे और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे तो यू कैन गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दैट. Thank you very much, sir. Suhail से मेरा question है. I hope Zulkarnain is still his issue has not been resolved. Sir Suhail, importance of networking, importance of alumni networks, importance of mentors, importance of socialization. इसके ऊपर सर थोड़ा सा kindly बात करेंगे. ये आपको किस तरह से equip कर सकती है, किस तरह से होन कर सकते हैं आपके skills को in terms of personal and professional development, sir. And before that, sorry sir, and this is the last from our part, and after that we'll be taking questions from the audience as well. So please stay tuned and अच्छा जी, ऐसा है कि जो हमारे यहाँ इसका मतलब लिया जाता है नेटवर्किंग का, वो है which is absolutely wrong, और probably मतलब हमारे यहाँ होता ही ये है तो हमें नजर ही आता है. नेटवर्किंग अपने शोबे के, अपने पीयर्स से मिलना, अपने शोबे के और लोगों से मिलना, या वो जो पीयर लेवल पे या वर्टिकल ऊपर नीचे की तरफ
ऐसे लोगों के साथ कनेक्टिविटी कायम रखना जिससे आप दुनिया से कनेक्टेड हो। मुझे इस बात का एहसास खास तौर पे यहाँ तो क्या होता है, हम बस अगर मिलते भी हैं आपस में तो अपनी गपशप के लिए मिलते हैं, हम कोई नॉलेज ट्रांसफर के लिए नहीं मिलते। बाहर जब हम जाते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर पेपर्स पढ़ने के लिए या बाकी काम करने के लिए, वहां पे वो जो इवेंट्स हैं वो तो एक अलग चीज है, उनसे जो बेनिफिट होना है वो तो अलग होता है। वो लोग इस बात पे बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि आप लोग मिलें एक दूसरे के साथ, और वो स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज इवेंट्स होते हैं। मतलब जो हॉल्स में सेशंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, लेकिन जो गैलरीज हैं उनके अंदर उन्होंने स्पेशल काउंटर्स लगाए हुए हैं कि इस टॉपिक पे लोग इधर आके इकट्ठे हों वगैरह वगैरह। आपको खाने पे मिलाएंगे और जगहों पे मिलाएंगे। बल्कि एक तो की नोट स्पीचेस में तो हमने ये देखा कि जो की नोट स्पीकर 5000 की ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, वो सबको कहता है कि उठ के खड़े हो जाओ और अपने इर्द गिर्द खड़े हुए जितने लोगों के साथ तुम 2 मिनट के अंदर अपना विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करोगे, जिसने सबसे ज्यादा किया उसको इनाम मिलेगा। 2 मिनट की टोटल एक्सरसाइज, और आप यकीन कीजिए कि रेस लगी हुई थी कि कितने ज्यादा लोगों को आप जानते हैं। और ये छोटी बात नहीं है। इसके बाद दिन के इवेंट में वो सारे लोग आपको जहां जहां मिलते रहे, आपको झुक के सलाम करते रहे। और ये तो खैर मैं साल के बाद मैं क्या इस तरह PMI की कॉन्फ्रेंसेस में 10 साल गैप रहने के बाद तकरीबन एक जनरेशन गुजर चुकी थी और नए लोग आ चुके थे, और मेरा ख्याल था कि अब मुझे कौन जानता होगा। आप यकीन कीजिए कि वहां पे लोग दूर दूर से आवाजें मारते थे कि वो सुहेल लग गया। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि नेटवर्किंग करने से मिलती है, खुद ऐसे कुछ नहीं होता कि आप कहें कि जी क्योंकि हम बड़े कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड सिफारिश नहीं है। नेटवर्किंग का मैं आपको रोल दिखाऊं कि वो लोग जिनसे मैं जिंदगी में एक दफा मिला हूं, मुझे कई दफा लोगों के फोन आए हैं, लोगों के कॉन्टेक्ट आए हैं कि भाई फलाने बंदे ने आपको रिकमेंड किया है। भाई वो मुझे नहीं जानता, सिर्फ मेरा विजिटिंग कार्ड और वो 5 मिनट की मुलाकात, और मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस तरह से मिली है कि आप इसमें सिफारिश के लोकल जो प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पर, आपने ऑफिस से बाहर निकले, ऑफिस में तो चले आप लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लाइक माइंडेड अदर लोगों से मिले, इंजीनियर्स की कोई एसोसिएशन हो, प्रोजेक्ट मैनेजर्स की कोई एसोसिएशन हो, कोई पब्लिक स्पीकिंग की एसोसिएशन हो, उनके अंदर जाएं और लोगों से मिलें। आप यकीन करें आपको मजा आ जाएगा। अच्छा यार, ये तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं दुनिया में, लोगों को आप जानते होंगे। आप यकीन कीजिए कि आप उतने पॉपुलर भी होंगे और आपको उनसे फायदा भी ज्यादा होगा। आपको पता होगा कि कौन सी स्पेशलाइजेशन का बंदा कहाँ बैठा हुआ है, इवन इन योर कंट्री। चलो बाहर की बात तो अलग है ना, अगर बाहर आप लोगों को जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं इस वक्त बड़े ऑनर से ये बात कह सकता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के फील्ड के जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, मैं उनको जाती तौर पे जानता हूँ, उनसे जाती तौर पे मिला हुआ, उनसे बातचीत की हुई। चले वो तो एक बहुत बात की बात है, अपने लोगों को जानते हैं। हम लोग अपने टेबल से उठ के अपनी आराम से निकल के नेटवर्किंग करना पसंद नहीं करते, सोशलाइज करना पसंद नहीं करते। और अगर आप करें तो फिर एक्चुअली फायदा तो है। तो ये थोड़ा सा हमें अपने आप से जंग करके, थोड़ा अपनी आदत से हट के ये काम करने की कोशिश करनी, अपनी तबीयत के खिलाफ जाके मैंने आज 10 बंदों से, नए लोगों से मिल के आना है, ये सोच के निकलें और आप देखें कि उन 10 लोगों के साथ आपका कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है। आई होप दिस इज ट्रू। Thank you so much, Mr. Suhail. Now I request audience to have questions. Questions from audience. If you have any questions. Hakim Bilal has raised the question. Assalamu alaikum, sir. My name is Abdullah Amir Khan and I'm a 3rd year student at NICE. And my question is from Mr. Mohsin. Mr. Mohsin, is Mr. Mohsin here? जी प्लीज गो अहेड। सर मेरा ये सवाल है कि आप जैसे ग्रेजुएट होते हैं तो आपकी जो फर्स्ट जॉब
सकती है, what sort of nature should that job be for your growth? जिसमें सर आप NHA में आपकी placement थी on Hunjra Pass and up there, so you had a proper growth in your career. So what sort of job should you opt for a proper growth? Should you go for money or should you go for the learning experience? Okay, so that was, by the way, not my first job. उससे पहले मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की थी. हमारा टाइम जो था वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे खासा बूम था, तो हम लोग एग्ज़ाम देने के बाद डिग्री आने से पहले कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते थे, तो वो दैट वाज अ डिफरेंट टाइम. इसलिए अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में बात करें तो फर्स्ट जॉब रोल प्ले करती है, लेकिन जैसे सोहेल साहब ने कहा था दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको लगता है कि आपने एक जॉब सिक्योर कर ली है, जॉब जैसी भी है, पैसे अगर अच्छे हैं, अगर पैसे अच्छे नहीं हैं, साइट की है, ऑफिस की है, जैसी भी जॉब है, लेकिन अगर आप ये फील करते हैं ना कि यू आर अ मिसफिट देयर, और ये फीलिंग आपको 6 माह में आ जाती है, 6 माह बाद आपको पता चल जाता है कि आप वहाँ पे फिट इन करते हैं या नहीं करते, आप वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, आपकी कोई पर्सनल लर्निंग है, आपको कोई ग्रोथ फील हो रही है, ये आपको 6 महीने में पता चल जाता है. अगर आपको ये अंदाजा हो जाता है कि आपकी कोई पर्सनल एक्सीजेंसीज हो सकती हैं, आपको फील्ड ऐसी हो सकती है जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट ना हो. जैसे अगर आप सिविल आप नाइस से हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जी डिज़ाइन की जॉब करनी चाहिए या एग्जीक्यूशन की जॉब करनी चाहिए. तो वो मेरा उस पर हमेशा जवाब ही होता है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है आपको उसकी जॉब करनी चाहिए. डिज़ाइन, अगर आपको डिज़ाइन का शौक है तो डिज़ाइन की कीजिए, अगर आपको एग्जीक्यूशन की साइड पे जाने का शौक है तो एग्जीक्यूशन की कीजिए. हम थोड़ा सा सेट पैटर्न्स फॉलो करने के आदी हैं कि जी हमारे सीनियर्स जो थे उन्होंने एक्स कंपनी में अप्लाई किया तो हम भी उस कंपनी में अप्लाई करते हैं. अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखा करें, ये ज़रूर देखा करें कि जो एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयर की वो आपके इंटरेस्ट से किस हद तक अलाइंड होती है. मेरे ही क्लास फेलोज जॉब मिली, वो गए और वो एम्प्लॉयर्स वर प्रीटी बैड, और वो उनको वहाँ पे काफ़ी दिक्कत रही. 6 माह तक उनके पास अपना पासपोर्ट भी नहीं था और फिर उनको वापस आना पड़ा बड़े मुश्किल हालात में. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस कि आपके पास अपॉर्चुनिटी कैसी आती है, और फिर आपको 6 माह के अंदर अंदर उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करते ही पता चल जाता है कि will it last or not. Sir, and another question from the whole panel, including because civil engineering का, तो sir Mr. Ali Haider और Sir Mohsin आप दोनों से है कि how convenient is it to shift your field, like go from hardcore construction sector to corporate and corporate to back? Haider sir, please go ahead. Okay, thank you, Mohsin. Abdullah, it's a very practical question in this type of scenario we usually face in the mid-career. I'll take a minute to answer your first question as well, जहाँ पे आपने पूछा था कि first job जो है उसमें क्या हमें choose करना चाहिए. I'll be very candid with you, keeping in view today's scenario. हम उस वक्त अपनी choice पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर सकते हैं when we have a number of options, ठीक है. जिस तरह मोहसिन बता रहे थे कि जब ये पास आउट हुए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बूम था एंड देयर वर लॉट ऑफ ऑप्शंस, सो प्रोबेबली एट दैट टाइम अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो या इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ की तरफ हो एंड वी हैव 2-3 ऑप्शंस, तो फिर तो हम इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा बात करते हैं. माई वेरी strong suggestion would be कि for the first job you need to show full flexibility. Learning को वो शायद उतना प्रोडक्टिव ना हो जितना आप किसी वर्क एनवायरनमेंट में गुजारेंगे, चाहे वो डिफरेंट ही क्यों ना हो. मैंने अपनी बिल्कुल फर्स्ट जॉब जो है वो स्टार्ट की थी राइट आफ्टर 3-4 days ऑफ पास आउट.
दैट वाज इन अ कॉल सेंटर टचस्टोन के अंदर, जो ये ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर है। मैंने उससे अपनी केमिकल इंजीनियरिंग तो नहीं सीखी, लेकिन मैंने उससे ऐसी और बहुत सी चीज़ें सीखी जिन्होंने आने वाले इंटरव्यूज में मुझे आंसरिंग डिफरेंट क्वेश्चंस हेल्प किया। सिमिलरली जो मेरी दूसरी जॉब थी विच वाज फर्स्ट टेक्निकल जॉब बैक इन 2012, मुझे 25,000 रुपये दे रहे थे कॉल सेंटर वाले 2012 में, और देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी। फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की जो कि 15,000 रुपीज़ उस टाइम दे रहे थे, 15, विच वाज क्वाइट लेस एट दैट टाइम। लेकिन उसमें मुझे अट्रैक्शन ये थी कि वो मेरी फील्ड की जॉब थी और उसमें हमने कोई 15-16 इंडस्ट्रीज के ऑडिट करने थे। तो आप जब ऑडिट करते हैं तो यू गेट टू नो इन्स एंड आउट ऑफ दैट इंडस्ट्री। सो उस टाइम मेरे लिए वो 25 से 15 पे आने का डिसीजन बहुत सही साबित हुआ, बिकॉज दैट गेव मी एन एक्सपोनेंशियल लर्निंग ऑफ माय फील्ड। और आई वुड से कि उसके बाद जो मेरी काफ़ी अच्छा जो फिर उसके बाद जो करियर स्टार्ट हुआ, उसमें वो लर्निंग्स थी जो उन चंद महीनों में हमने हासिल की। सो फर्स्ट जॉब में यू नीड टू बी फुली फ्लेक्सिबल। रिगार्डिंग योर सेकंड क्वेश्चन कि हमें करियर शिफ्ट करने में कितना एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अगेन जैसा सुहेल साहब ने भी कहा था कि यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। एब्रप्ट डिसीजन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ वेल इन्फॉर्म्ड, वेल थॉट डिसीजन। लेकिन अगर आपको जिंदगी के किसी हिस्से पे ये लग रहा है कि जिस फील्ड में आप हैं इससे बहुत ज़्यादा बेहतर आप किसी दूसरी फील्ड में परफॉर्म कर सकते हैं, सो दिल की भी मान लेनी चाहिए, लेकिन यू नीड टू बी इक्विप्ड फॉर दैट एज वेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव आल्सो टेकन दिस बोल्ड डिसीजन कि मैं टेक्निकल से ट्रांसफॉर्म करके एचआर में आया, लेकिन immediately I have started MBA as well because you need to gear up for that as well, right? So agar I mean with the last technical qualification on my CV and having a practical experience of HR, कोई दूसरा तो दूर मैं खुद ही इतना कॉन्फिडेंट फील शायद ना करूं। आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी क्वालिफिकेशन साथ साथ अपग्रेड करते रहें, और आई एम फ्लेक्सिबल इन दिस केस कि अगर आपको कभी लगता है कि आप डिफरेंट किसी फील्ड में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। जी मोहसिन। अच्छा, मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग यानी इत्तेफाक ही कहना चाहिए कि हम तीनों जो पैनलिस्ट हैं, मेरा ख्याल हम तीनों ही अपनी 4 जॉब्स चेंज कर चुके हैं। सुहेल साहब जो थे, ही इज आल्सो सिविल इंजीनियर, लेकिन उन्होंने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में किया और अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के गुरु हैं। और बल्कि आप लोग जो स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं PMI के, उनमें से बहुत सारे स्टैंडर्ड्स की इज अ कोऑथर। इसी तरह हैदर हमारे साथ जो हैं वो HR में हैं इंजीनियरिंग करके। मेरी फील्ड जो मेरा कोर एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसी है वो इट इज़ टेक्नो लीगल। मैं आजकल लॉ कर रहा हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट्स और उस किस्म की चीज़ों में है। तो ये यानी आप 3 मिसालें तो आपके सामने हैं। कभी आपको जो है आप देखें, यू हैव टू फाइंड द स्वीट स्पॉट, कि जहाँ पे आपका वो दिल लगता है ना, और आपको लगता है कि यार ये बड़ी अच्छी फील्ड है, इसमें बड़ा मजा आता है काम करने का। कैसे बात की चीज़ है, लेकिन इसमें बड़ा मजा आता है। मैं ये काम करता हूँ तो आई फील रियली हैप्पी, आई फील अकम्प्लिश्ड। तो आप फिर उसके अंदर अपना स्किल बढ़ाएं, फिर उसके अंदर आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएं, फिर आप अपने उस नैक को उसको चमकाएं, उसको पॉलिश करें, फिर आप इस पोजीशन पर आएंगे कि आपकी कम्युनिटी जो है या आपका अल्मा मैटर जो है या आपके इर्द गिर्द के लोग फिर उसको रिकग्नाइज करें। Right, sir. Thank you so much for the input. Yes, sir. हाशिम आप म्यूट पे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। तमाम गेस्ट को और पैनल को काफ़ी अच्छा लगा सुन के, डिस्कशंस वगैरह में पार्ट लेके। सर बेसिकली आई वुड लाइक टू आस्क अ जनरलाइज्ड क्वेश्चन फ्रॉम द पैनल एंड गेस्ट टू कि मैंने कंपेयर करना था मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब शिफ्ट के हवाले से या अपनी डिग्री के हवाले से। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम नाइस
2018 जनवरी में ग्रेजुएशन हुई, देन आई वर्क विद प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट केपी। लेकिन ड्यूरिंग माय डिग्री सोशल सर्कल मेरा काफ़ी सोसाइटीज़ में काम करना, मार्केटिंग के हवाले से मैंने काफ़ी काम किया था। फिर ग्लोबल यूगर एक्सचेंज प्रोग्राम पे भी आई वाज वन ऑफ आई गॉट सेलेक्टेड। तो मेरा माइंड बन गया था कि मैं क्यों ना अपना लाइक ट्राई करूं कि ऑलरेडी मार्केटिंग में काम किया हुआ है तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज जिसमें GSK, नेस्ले और ख़ासकर खाड़ी, मैंने इसमें अप्लाई किया। सो मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन उनके डबल फेस स्लोगन के बारे में मैं बोलूँगा कि एक तरफ वो उनका स्लोगन है कि वी आर मोर इनटू स्किल्स रेदर देन डिग्री। अगर किसी में टैलेंट है तो हम उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं, जैसे फ्यूचर लीडर्स प्रोग्राम काफ़ी हैं उनके। लेकिन मैं खाड़ी में आई वाज द ओनली वन जो कि सिविल बैकग्राउंड से था, बाकी सारे लम्स IBA के थे और कुछ मैकेनिकल के स्टूडेंट्स थे। इसी तरह GSK में आई वाज द ओनली सिविल इंजीनियर, नेस्ले में एक दो और सिविल इंजीनियर साथ थे। लेकिन अल्टीमेटली फाइनल एंड पे पहुंच के असेसमेंट्स हुए, सेशंस हुए, इंटरव्यू तक भी पहुंचे, लेकिन वो सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया पार्ट में अगेन उन्होंने प्रेफर किया सेम बैकग्राउंड को जिनका मार्केटिंग से था और वो था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम शिफ्ट कर भी रहे हैं तो शुड वी लुक आवर डिग्री के, क्या ये शिफ्ट हमें लाइक फ़ायदा देगा भी कि नहीं? क्योंकि अक्सर मैकेनिकल वालों को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है सप्लाई चेन में, लेकिन अक्सर जिस सर्कल को मैं जानता हूँ, सिविल वाले इवन अगर फाइनल तक, इवन जैसे मैं खुद पहुंचा हूँ, वो वहाँ पे मतलब मैं कहूँगा कि मार नहीं खा जाते, बट प्रेफर नहीं किया जाता उनको। सो सर इसके बारे में अगर आप कुछ गाइड करते हैं। मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। देखें, बात यह है कि जब हम अपने एरिया से बाहर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको उन लोगों जो आपके मुकाबले में लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर होकर जाना पड़ता है। आप उनके बराबर जाके मुकाबले में जीत नहीं सकते। आपको जैसे अभी हम सब ने अपने प्रोफेशन चेंज किए हैं, बात ये थी कि इंजीनियरिंग एक तरफ, उसके बाद जब मैं तकरीबन 15 साल IT में काम किया, IT में जिस जमाने में काम किया उसमें IT में ही लोग जानते थे। जो लोग मुझे उस जमाने में जानते थे वो आज भी जब मिलते हैं तो वो कहते हैं यार ये तो IT वाला सुहेल है। अभी जो लोग जानते हैं उनके लिए ये सरप्राइज है कि मैं जनाब फौजी हूँ या मैं IT में कुछ रह चुका हूँ। वो कहते हैं हम तो आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के हवाले से जानते हैं। तो जिस शोबे में भी जाए उसमें पहले इतना एक्सेल कर लें कि आपके लिए लोग जगह छोड़ के खड़े हो जाएं कि भाईजान इधर आए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको कुछ नया, मतलब चले मैं मानता हूं कि आपका उतना एक्सपीरियंस तो नहीं होगा, मगर कम से कम हेड्स एंड शोल्डर्स अबव तो होना अपने मुकाबले से, तभी आपको मानेंगे। वरना इंजीनियर कहेंगे तो इंजीनियर है, चलो यार लाइन के पीछे लगे खड़े हो। जी, एनीवन एल्स टू आंसर? इसमें इसी में सर की बात में ये चीज ऐड है जो जैसे Who is next? मोहसिन सर की बात नहीं, मैंने कहा एक चीज ऐड कर दें कि जैसे सर ने कहा कि अब उसको अगर हम थोड़ा सा क्वांटिफाई कर लें कि अगर MBA वाले या BBAs वाले जो 3 साल या 4 साल के एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं तो आपकी परफॉर्मेंस कम से कम उनके 2 साल वाले के बराबर तो हो या उनके इक्वल तो हो, तो फिर ही आपको कोई बंदा वो देगा। तो यानी आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसमें आपके पास कुछ खास होना चाहिए, यानी ताकि आपके एम्प्लॉयर को ये लगे कि यार मेरे आई एम गेटिंग बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, मुझे एक इंजीनियर भी मिल रहा है, मार्केटिंग का बंदा भी मिल रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको चाहिए ना कि उसको अपने पैसे के अगेंस्ट क्या आप सर्विस मिल रही है। जब उसको लगेगा ना कि यार मुझे उतने ही पैसे खर्च करने में मुझे 2 स्पेशलिटीज मिल रही है, तो वो दूसरे बंदे को नहीं हायर करेगा, आपको प्रेफर करेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरा क्वेश्चन सर सुहेल से है बेसिकली। सर मेरा नाम मोहम्मद हमजा रहमान है एंड आई एम करंटली परस्यूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और मेरा बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। तो सर कंसीडरिंग द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो फील्ड है उसमें भी वैसे नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने नेटवर्किंग की सारी बात की कि हमें लाइक माइंडेड लोगों से मिलना है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सर जब नेटवर्किंग हम मतलब जिस लेवल पे आप
तरह से हैं, तो आप मतलब दोनों एक दूसरे को कोई ना कोई बेसिकली फायदा दे रही हैं। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट है बेसिकली, जिसके पास मतलब इस तरह से कुछ है नहीं, कुछ ऑफर करने के लिए नहीं है, तो उसके लिए आप कौन से प्रैक्टिकल स्टेप सजेस्ट करेंगे जो उसको लेने चाहिए, या किस तरह उससे अप्रोच करना चाहिए ये पूरी जो नेटवर्किंग का प्रोसीजर है इसको? पहले तो मुझे ये बताएं कि आपकी बेसिक डिग्री किस चीज में है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। देखें जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके वो तमाम तरह की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मास्टर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो आपकी कोर स्पेशलाइजेशन है या जो आपके दिल के करीब है, जरूरी नहीं है कि कोर स्पेशलाइजेशन में बंदा एक्सेल भी करे। हो सकता है जैसे बात हो रही थी, आप मार्केटिंग में एक्सेल कर जाते हैं, तो फिर आपके जो भी स्पेशलाइजेशन आपने चुनी हुई है अपने लिए, जो आपको अच्छी लगती है, उसके प्रोजेक्ट मैनेजर आप बनेंगे। इसलिए आपको उस कोर स्पेशलाइजेशन में एक्सेल करना पड़ेगा। खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने से कुछ नहीं होगा। इतना होगा सिर्फ कि एक डिसिप्लिन आ जाएगा, काम करने का तरीका, उसका स्ट्रक्चर, उसका वर्क समझ आ जाएगा, उसके गुड प्रैक्टिसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस का कुछ अंदाजा हो जाएगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको और कुछ नहीं दे रही। बाहर के मुल्कों में, कनाडा में, अमेरिका में लोग जॉब नहीं मिलता प्रोजेक्ट मैनेजर को। वो और आप पीएमपी करके आ गए, तो जब तक उधर आपका तजर्बा नहीं होगा और थोड़ा सा भी तजर्बा हो, पॉइंटेड हो, तो वो कहते हैं काम हो गया कि ये अपने शोबे का और ऊपर से प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशनल भी है और इतना तजर्बा भी है, तो जबरदस्त काम हो जाता है। तो यही है कि आप अपने स्किल को मल्टी डायमेंशनल इंप्रूव करें, उनको डेवलप करें। अपना जो चाहे कि आप अगर इंजीनियर है कि सिविल इंजीनियर है, तो भाई सिविल इंजीनियरिंग को भूल तो ना जाए ना। अगर उसी के ऊपर रोजी कमानी है तो फिर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट उसी के अंदर करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा कमाल की बात है कि चूंकि ये बड़ा देयर इज अ लॉट ऑफ रूम अवेलेबल इन इंजीनियरिंग, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर्स तो इंजीनियर्स तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़े नहीं होते, तो आप अंधों में काना राजा हो जाएंगे और आपके तो कमाल हो जाएगा। तो ये एमपीएम करना एक बहुत अच्छा आइडिया है, मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दिस इज वेरी गुड आइडिया फॉर इंजीनियर्स स्पेशली। एक कम अज कम आप अपने सही ग्रेड के ऊपर आ जाते हैं और सही तरह से चीजों को हैंडल करने के लिए आ जाते हैं। बाकी फिर आपने एक्सेल करना है आगे, जिस तरह से जमाना है। अब मिसाल के तौर पे आईटी वाले जो हैं, उनकी बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बनती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ। मेरी वाइफ है, वो स्टैटिस्टिशियन है, एजुकेटर है, उनको पीएमपी में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो भी पीएमपी में है। उनको इसलिए नहीं मिली कि वो जब कनाडा में थी तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे यहाँ स्टैटिस्टिशियन की जॉब पीएमपी से हमें समझ नहीं आ रहा। ऐसी बात नहीं है कि इसका रिलेशन ना हो, लेकिन वहाँ पे तो जॉब मार्केट वो ऐसी थी कि उनके लिए शूट नहीं करते। कहते थोड़ी सी आईटी सीख के आ जाए तो काम मिल जाएगा। इस हिसाब से आपने देखना है कि मार्केट की डिमांड क्या है, आपका स्किल क्या है। ये दो तीन चीजें, अपना दिल देखें कि किस तरफ लगा हुआ है, मार्केट किस तरफ जा रही है, और उन दोनों को मैरी अप करके आप अपने रास्ता में। Thank you so much. Thank you. There's a question. Just Zulkarnain. Sorry, Zulkarnain. Please give me the mic, please. Actually, a lot of people are texting me on WhatsApp that they cannot see the option of raising the hand. So, Mr. Waqar, can you please fix it, or is there any? Are we not giving them chance to raise the hands? I mean, what are the options technically? And अगर ये आपकी स्क्रीन पे अगर आप माउस होवर करें, जो लोग लैपटॉप पे हैं, तो सामने 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। ये माइक के साथ शेयर स्क्रीन है। अभी देखें, जुल्करनैन शाह साहब का रेज हैंड आ रहा है। 3 डॉट्स को प्रेस करेंगे तो रेज हैंड की ऑप्शन है। अगर मोबाइल पे हैं तो आप अपनी स्क्रीन पे टैप करें, वहां से रेज हैंड हो जाएगा। Okay, Mr. Rizwan, if you can hear me, आप क्वेश्चन अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, because आपका मुझे भी just I received a text from you. अस्सलाम वालेकुम।
Adil, you can hear me? Yes, yes. Thank you very much for your precious time, the guest speakers. My name is Rizwan Ahmed. I'm currently working as an executive officer in Punjab Safe Cities Authority, and my question is with Sir Suhail. एक बड़ा डिलेमा है हमारा जब हम कहीं भी मैनेजमेंट पोजीशन के लिए जाते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है पास्ट 8 इयर्स में, कि आपकी जो सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन है उनको शायद वो वेटेज नहीं दी जाती जो कि आपके कोर्सेज जिस तरह आप मास्टर्स करते हैं उनको दी जाती है. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें ऑप्ट करना चाहिए ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस को या हमें मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस तरह जाना चाहिए, क्योंकि हमारे मोस्टली डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस को वैल्यू नहीं किया जाता. तो इस पे आपका क्या टेक है? असल में आप दो चीजें कर रहे हैं, एक तो आप ऑनलाइन सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं. देखिए जी, ऑनलाइन में तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ. मार्केट में बहुत सी ऑनलाइन चीजें आ गई हैं, हर कोई उठा के तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन है, मैं उसको इतना ज्यादा क्रेडिबल नहीं समझता. हाँ, कोई हार्वर्ड वाला है, कोई और अच्छी जगह है, कोई जबरदस्त जगह है, वहां का सर्टिफिकेट है. अगर आप सर्टिफिकेशन के ऊपर फोकस करें, प्रॉपर सर्टिफिकेशन, PMP है, Prince2 है और बहुत सी सर्टिफिकेशंस हैं, वो सर्टिफिकेशन तो अपनी जगह मकाम रखती है ना, वो तो जहां से मर्जी है वो तो आपके जबरदस्त तरीके से काउंट करेगी. लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको इस बात का भी एहसास करना है कि जो हमारे मार्केट में एम्प्लॉयर वो कितना एजुकेटेड है. पता चलता है वो बनिए का बेटा है, उसने जिंदगी में कभी ये वाला सिलसिला देखा नहीं है, सर्टिफिकेशन और स्किल डेवलपमेंट और ये सब कुछ, तो वो कहता है ये क्या बकवास है, पढ़ लिख के आ जाते हैं, आता जाता है कुछ. भाई बात ये है कि वो जो आप पढ़ के आए हैं, जो आप सर्टिफिकेशन लेके आए हैं, अगले को भी तो इतना एजुकेट करें कि उसको समझ आए. मतलब ये तो मैं अनपढ़ की क्या बात करूं, मैं आपको ये बताता हूँ कि पढ़े लिखे लोग एजाइल इंडस्ट्री के, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के CEOs बैठे हुए हैं, 2-3 लोगों के साथ उस तरह पैनल डिस्कशन हो रही थी और वो आपस में ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि PMP क्या चीज होती है. जी हमें तो PMP से के बगैर लोग बड़े अच्छे लगते हैं और ये PMP भी कोई सर्टिफिकेशन है. मैंने कहा आप में से कोई भी इसकी जो डिफिकल्टी लेवल को अगर समझे तो आपको पता चले कि ये चीज क्या होती है, क्योंकि तुम सब लोग जाहिल हो, तुम्हें से किसी ने भी PMP नहीं किया हुआ, कि कोई भी इस दर्द से नहीं गुजरा, इसलिए तुम लोग हायर ही नहीं करते हो PMP को, क्योंकि तुम्हें एहसास कमतरी का शिकार होते हो. तो बुनियादी तौर पे कुछ वक्त गुजर जाए, लोग और ज्यादा ट्यून अप हो जाएंगे इन चीजों के बारे में, फिर आप देखेंगे कि मार्केट मांगेगी ही सर्टिफाइड आदमी. आप बाहर जाके देखें, सऊदी अरब में, गल्फ में, आपको PMP किसी भी जॉब के लिए, आप प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब नहीं अप्लाई कर रहे, अकाउंटेंट का जॉब अप्लाई करें, PMP किया हुआ है तो आपको ग्रेड अप कर दिया जाता है फटाफट. तो मतलब ये है कि मैंडेटरी हो चुका है कि जनाब हर किसी को कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर का पता होना चाहिए. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन आपके लिए प्राइम है. इस तरह और भी चीजें हैं और इंटरनेशनल मार्केट में मुख्तलिफ मुल्कों का कुछ अपना अपना मिजाज होता है. पाकिस्तान में थोड़ा अभी भी वो बनिए वाला माहौल चल रहा है, भले जो मर्जी हो जाए, पढ़ लिख भी गए हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी सी प्रॉब्लम है. तो थोड़ा लोगों को एजुकेट करना होता है. मुझे भी पता है कि मैं जब नया मैंने फौज छोड़ी तो मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ पे एक बड़े सीनियर किस्म के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने मुझसे इसी किस्म का एक बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन किया. उनके ज़हन के मुताबिक जो बात सही थी या उनको किसी उनके हकीम ने जो बताई थी, उन्होंने कहा जी बस वो जवाब ठीक है और बाकी कोई चीज़, जबकि मुझे इस बात का पता है कि जो मैंने उसको जवाब दिया था दैट वाज मच मोर अप्रोप्रिएट देन व्हाट ही वाज थिंकिंग. वो एक टनल विजन रखते हैं लोग काफी सारे, तो वो प्रॉब्लम्स अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमने इसी माहौल में और इसी में सस्टेन करना है. तो इस बात से मत घबराएं कि एक और बात, और वो बात ये है कि जैसे बात कर रहे थे कि जॉब मिलती है जो भी ले ली जाए, जरूर ले ली जाए, लेकिन अब जो हालात हुए ना कोविड में और बाकी आगे पीछे, लोगों को फायर कर दिया गया है, लोग जो है ले ऑफ कर दिए गए हैं. अभी ये सिचुएशन बहुत कॉमन होती जा रही है कि लोग काम करते करते फारिग हो गए घर पे, कॉम्पिटेंट किसी बात नहीं है, उनको किसी वजह से निकाला गया. हमेशा याद रखिए इस तरह की चीजें होंगी मार्केट में, और ये जो टाइम आपको घर बैठने का मिला है इसको यूटिलाइज कीजिए
अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट में से कि 4 साल आपको घर बैठना पड़ता है, अल्लाह ना करे कि इतनी देर किसी को बैठना पड़े, लेकिन आप 4 साल में वो कुछ पढ़ लें, वो कुछ जो जब आप वापस जाएं तो आपका सीवी एकदम कंप्लीटली एनहांस्ड हो। ये ना हो कि 4 साल का गैप है, आप कहें जी मैंने ये कुछ किया है और मैं अब ये काम करने के काबिल हूँ। तो कभी भी वक्त जाया मत कीजिए। और आप देखेंगे, बल्कि तो कहता हूँ कि आप जब जॉब कर भी रहे हैं तो साथ साथ अपने आप को डेवलप करते रहिए, थोड़ा थोड़ा, कम से कम साल में एक सर्टिफिकेशन जाए कोर्स तो बंदा कर ही सकता। Did I answer your question? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने काफी अच्छा आंसर कर दिया है कि साल में बंदा कोई भी एक सर्टिफिकेशन है वो करता रहे तो इट विल इंप्रूव योर मैनेजमेंट स्किल्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। और किताबें पढ़ने की आदत डालिए। अगर आप कोई चीज सर्टिफिकेशन के थ्रू हासिल नहीं कर सकते तो किताब पढ़ें, वो आपको हमेशा कुछ नया सिखा के जाता है। थैंक यू सो मच। Waqar, is there any question? Yes, I have one question from Mr. Suhail Iqbal. Assalamu alaikum, sir. I am Sultan Mubin. I'm working with USAID. I have done engineering. I have around 8 years of experience. My one question is that when we start the career, we have this inner spark, and we seek a lot of opportunities. We go for certifications. We go for master programs. But once you go into the mid of your career, like you have passed around 8 to 10 years, then your inner spark, your passion, it dies out. So what's your suggestion to keep it up? And as you suggested, to keep moving with the, keep doing the certifications and programs. But once you don't have this inner sparks, it's difficult to go through these certifications and programs. So what's your suggestion for the mid-career persons like me? सर, ये आपने बात की है थके हुए लोगों की। बिल्कुल ठीक है जी। आप इतनी जल्दी थक क्यों जाते हैं? मैं इस वक्त आई एम ऑलमोस्ट टचिंग 60 और अभी एक नई सर्टिफिकेशन आई, मेरे पैसे नहीं है। मैं ये बात तो मानता हूँ, अगर आपके पास पैसे ना हो और आप वो चीज ना कर सकते हो, वो एक अलग मजबूरी है, लेकिन मरने देना तो आपकी कमजोरी है। देखिए, उम्र गुजरने पे मेरी कोई कैद नहीं है, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इल्म हासिल करने पे तो मेरा कंट्रोल है ना। तो अपने अंदर का स्पार्क अगर आपने मार दिया है तो ये आपका अपना जाती कसूर है, और हम सबको ये स्पार्क जिंदा रखना है। Assalamu alaikum. I'm Muhammad Aftab, working in IDAP. Sorry, I have a question. Can I ask? जी बोलिए। सर, जहाँ तक हमारी पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ताल्लुक है, जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया अपने 7-8 साल में, वहाँ हमारी इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टेक्निकल हार्डकोर टेक्निकल स्किल्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। मतलब इफ़ यू आर इन एमएससी इन स्ट्रक्चर्स और एमएससी इन सॉइल, देन दे विल प्रेफर यू ओवर योर जेनेरिक एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट।